السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایز ٹی وی پروفیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی کو کھولنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہو۔ یہ کہانی ہے 1939 کی رشیا کے ایریا سائبیریا کی۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے ایک جانوش ویزچیک شخص کے نام سے، جو کہ کمیونسٹ پارٹی سے ہوتا ہے اور مختلف ملکوں میں جاسوسی کا کام کرتا ہے۔ جانوش پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ سوویت یونین میں جاسوسی کے لیے آیا تھا اور یہ یہاں کی سیکرٹ انفارمیشن باہر بھیجنے والا ہے۔ اس تحت اسے گرفتار کر کے سائبیریا کے ٹھنڈے ترین ایریا میں لے کے آیا جاتا ہے اور اسے ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا کر سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں۔ چیف کمانڈر آرمی سائبیرین یہ پوچھتا ہے کہ تم اس ملک میں کیا کرنے آئے ہو؟ جانوش ویزچیک آگے سے ٹیڑھے سیدھے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر کسی خاص کام کے لیے نہیں آیا۔ جب چیف کمانڈر کو یہ بات جھوٹ لگتی ہے تو وہ اپنے پہرے دار کو کہتا ہے کہ وٹنس کو اندر لے کے آیا جائے۔ وٹنس کوئی اور نہیں بلکہ جانوش ویزچیک کی بیوی ہوتی ہے، اور انہوں نے جانوش ویزچیک کی بیوی کو اس حد تک ڈرایا ہوتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی خبر دی یا کوئی اور بیان دیا تو ہم تمہارے ہسبینڈ کو مار دیں گے۔ تو جیسا جیسا وہ کہتے ہیں، جیسے جیسے وہ سوال پوچھتے ہیں، مثلاً کہ پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ جانوش ویزچیک سے تمہارا کیا تعلق ہے، تو اس نے بتایا کہ جانوش ویزچیک میرے ہسبینڈ ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ سیم سوال جانوش سے بھی پوچھا جاتا ہے اور سیم ہی آنسر آتا ہے۔ ناظرین، پھر جیسا کہ انہوں نے جانوش کی بیوی کو ڈرایا ہوتا ہے، اس کے بعد جانوش اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم ان کے کیوں جھانسے میں آ رہی ہو، جو سچ ہے وہ بتا دو انہیں۔ وہ اس ڈر سے کہ کہیں میرے ہسبینڈ کی جان نہ چلی جائے، اس لیے وہ ان سے بھی جھوٹ بولتی ہے، اور یہاں سے سفر ہوتا ہے اس کہانی کا۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ستمبر 1939 میں، اور پھر جب جانوش ویزچیک کی بیوی اس کے خلاف بیان دیتی ہے تو جانوش کو سائبیرین کے ٹھنڈے علاقے میں قید کر لیا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جانوش کی دوستی ایک خباروف نامی انسان سے ہوتی ہے، جو کہ وہاں کافی عرصہ سے رہا ہے۔ ویورز، جانوش باتوں باتوں میں ہی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آج تک کوئی اس جیل سے بھاگا ہے؟ تو خباروف نامی شخص بتاتا ہے کہ نہیں، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص بھاگنا چاہتا بھی ہے تو یہ لوگ اسے مار دیتے ہیں۔ بالآخر جانوش کے ساتھ ٹائم گزرتے گزرتے 8 لوگوں کی ٹیم جانوش بنا لیتا ہے، جن 8 لوگوں میں ایک شخص خباروف بھی ہوتا ہے۔ لیکن خباروف دراصل سوویت یونین کا جاسوس ہوتا ہے، اسی لیے وہ جانوش کو اکساتا ہے، اسی طرح نئے لوگوں کو اکساتا ہے کہ وہ بھاگیں اور یہ ان کی انفارمیشن جا کے سوویت آرمی کو دے اور اس کو بونس کے طور پر کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیا۔ ویورز، بالآخر ایک رات برف باری کا طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ اسی دن جانوش اور اس کی ٹیم نے یہ پلان بنایا ہوتا ہے کہ جس دن برف باری ہوگی ہم اسی رات کو بھاگیں گے۔ جب یہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو جانوش اپنی ٹیم کو ریڈی کر لیتا ہے اور بھاگنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ بالآخر ان میں سے جا کے کوئی ایک شخص جا کے جنریٹر بند کرتا ہے۔ جنریٹر آف ہوتے ہی جو کرنٹ کے الارم ہوتے ہیں وہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب لائٹ بند ہوتی ہے اور پہرے دار تبدیل ہوتے ہوتے ان کو 5 سے 10 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ بالآخر وہ تار کاٹ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن سوویت یونین کے سولجرز کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے اور وہ ان
के पीछे अपने पालतू कुत्ते छोड़ देते हैं। व्यूअर्स, इस तूफान में भागते भागते ज्ञानुश अपने आप को भी संभालता है और बाकी अपने साथियों को भी। वो तकरीबन 20 किलोमीटर एक ही दफ़ा में सफ़र तय कर पाते हैं। तूफ़ान ज़्यादा होने की वजह से सोवियत यूनियन और उसके कुत्ते पीछे रह जाते हैं और उनके कदमों के निशान भी नहीं मिलते। बिलाखिर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ये आके बैठते हैं, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं और वहाँ से फिर आगे चलते हैं। व्यूअर्स, ये 8 बंदे होते हैं। इनका जो लीडर होता है ज्ञानुश वेस्टजैक, एक बुज़ुर्ग साथ होते हैं मिस्टर स्मिथ, एक शख्स वॉल्का, एक शख्स टोमैस, एक शख्स जोरान, एक एंड्रयू। ये 7-6 लोग पहले भागते हैं और इनमें से एक और शख्स होता है जिसका नाम काज़ीक होता है। आपको बताते चलें कि जैसे ही ये छावनी से बाहर निकले थे और 20 किलोमीटर जब इन्होंने तय किया था तो इन्होंने रेस्ट के लिए एक जगह रात गुजारने का फ़ैसला किया। ज्ञानुश वेस्टजैक जानता था कि उसे रात कैसे गुजारनी है। उसने सारे मुल्कों में जासूसी की थी और उसको कैसे दिन और रात किस हालात में गुजारने हैं, ये इस काम का माहिर तरीन शख्स था। काज़ीक इनमें से एक ऐसा इंसान था जिसको आँखों से नज़र कम आता था। वो सभी ज्ञानुश उनसे कहता है कि जाओ सभी लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आज रात हम यहाँ रुकेंगे और आग जलाएंगे। सभी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं। उनमें से 2 शख्स पत्थर जमा करने लग जाते हैं और एक आतिशदान बनाकर आग जलाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। काज़ीक को आँखों की वजह से कम दिखाई देता था, इसीलिए वो भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाता है और कहीं खो जाता है, कहीं दूर इलाके में चला जाता है लकड़ियाँ इकट्ठी करते करते। जब सारे आ जाते हैं तो एंड्रयू कहता है कि हम सब तो आ गए लेकिन काज़ीक अभी तक नहीं पहुंचा। काज़ीक जब वापस पहुंचता, काज़ीक जब उनको मिस होती है कि यहाँ पे काज़ीक की मौजूदगी नहीं है तो वो काज़ीक को ढूंढने लग जाते हैं और तब एंड्रयू उनको बताता है कि काज़ीक को रात को दिखाई कम देता है, इसीलिए सारे काज़ीक को ढूंढने में चले जाते हैं। रात सारे जंगल में ढूंढ कर जब उन्हें काज़ीक नहीं मिलता तो सभी वापस आकर इसी परेशानी में बैठ जाते हैं कि वो कहीं न कहीं अब खो गया है। सुबह का सूरज जब चढ़ता है तो वो फिर से काज़ीक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बर्फ़ानी दरख्तों में और कई ऐसी जगहों पर देखते हैं जहाँ काज़ीक के जाने के आसार होते हैं। आप जानते हैं कि बर्फ़बारी हो रही थी और कदमों के निशान तो वैसे ही मिट चुके थे। बिलाखिर जब सुबह देखते हैं तो काज़ीक उन्हें एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ मुर्दा मिलता है और बिलाखिर वो उसको वहाँ से उसकी लाश उठाकर पत्थरों के नीचे दफन कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो प्लान बनाते हैं कि हम साइबेरिया से निकलकर बाइकल लेक तक जाएंगे। बाइकल लेक उनसे बहुत दूर होती है और उन्हें मंगोलिया का बॉर्डर भी क्रॉस करना होता है। मंगोलिया का बॉर्डर बहुत दूर था, इसीलिए पहले ज्ञानुश वेस्टजैक सूरज की मदद से ये पता लगाता है कि हमें किस सिमत में जाना है, क्योंकि हम अगर 1 इंच भी इधर से उधर हुए तो हमारी सिमत तब्दील हो जाएगी और हम अपने रूट से भटक जाएंगे। बिलाखिर वो बाइकल लेक तक पहुंचते हैं। बाइकल लेक पर पहुंचने तक उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी होती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि एक भेड़ जो कि दलदल में फंसी होती है उसे वो वहाँ से निकालते हैं और उसे ज़िबा करके वो रात स्पेंड करते हैं। मगर इससे पहले उन्हें एक और चीज़ से सामना करना पड़ता है। वो ये कि जब वो बाइकल लेक पर के जंगल से गुज़र रहे होते हैं तो उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मिस्टर स्मिथ ज्ञानुश से कहते हैं कि हमारे पीछे कोई ना कोई हमारी जासूसी कर रहा है और अगर इसने हमारी खबर सोवियत्स को दे दी तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सभी ज्ञानुश से कहता है कि ये सभी इस शख्स को घेर लो चारों तरफ से। जब चारों तरफ से शख्स सारे उसे घेरने की कोशिश करते हैं तो एंड पे जाके क्या देखते हैं कि एक लड़की उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रही है।
वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इनकी 8वीं साथी इरेना ही होती है। व्यूअर्स, इरेना जब मिलती है तो मिस्टर स्मिथ से वो झूठ बोलती है कि उसके वालिद को सोवियट्स ने मार डाला, लेकिन ये बात वो झूठ कहती है। वो जस्ट उन्हीं की तरह किसी न किसी तरह से जेल से भाग रही होती है और इन्हें आता हुआ देखकर इनके साथ जुड़ जाती है। वो कहती है कि जब आप जेल से फरार हुए थे तब भी मैं आपके साथ ही भागी थी, लेकिन मैं इस डर से भागी थी कि कहीं आप रशियन ना हो, इसी वजह से मैं आपके करीब नहीं आ रही थी। बिल आखिर स्मिथ कहता है कि हमारे पास ना खाने के लिए सामान है और ना ही हम इतने काबिल तरीन हैं कि हम इसको उठा सकें। ये कमज़ोर है लड़की है और ये हमारे सफ़र को भी कमज़ोर कर देगी। तो इसी दौरान वो उस लड़की को वहाँ छोड़ देते हैं और फिर वापस अपने सफ़र की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी दौरान जब उन्हें भेड़ का शिकार मिलता है तो वो भेड़ को ज़िबा करके रात का खाना स्पेंड करते हैं और एंड्रू नाम का बंदा जाके वापस इरेना नामी लड़की को वापस ले आता है और अपने साथ सफ़र में शामिल कर लेते हैं। वो लेक बाइकल से आगे फिर मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंचते हैं। वहाँ मंगोलिया और रशिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इसी बीच वाल्का जो उनका साथी होता है वो कहता है कि मैं मज़ीद आगे नहीं चल सकता, और ज्ञानुश उसे कहता है कि तुम तो कहते थे कि मैंने अमेरिका से भी आगे जाना है, तो तुम अभी क्यों हार मान रहे हो। तो वाल्का कहता है कि मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं और नहीं चल सकता और मैं अपना सफ़र यहीं पर अख्ताम पजीर करता हूँ। और वो वाल्का वहाँ से जुदा हो जाता है। फिर आगे चलते हैं और सफ़र इसी तरह गुज़रता रहता है। कहीं सख्त पथरीला मैदान आ जाता है, कहीं उन्हें जंगलात का सामना करना पड़ता है, कहीं उन्हें भूख और प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता है और कहीं उन्हें रेगिस्तान का सामना करना पड़ता है। बिल आखिर चलते चलते टोमास की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने साथियों के साथ आखिरी लम्हात गुजारने लगता है। और कुछ ही टाइम गुजारने के बाद वो इंतकाल कर जाता है। सारे साथी उसको दफन करके दुआ करके फिर आगे चले जाते हैं। फिर रेगिस्तान में चलते चलते इरेना की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो भी मरने के करीब हो जाती है। गर्म और सख्त तरीन गर्मी की वजह से इरेना भी वहीं रेगिस्तान में आखिरकार दम तोड़ देती है। फिर बचते हैं 4 साथी, ज्ञानुश वेचेक, जोरान, एंड्रू और मिस्टर स्मिथ। ये चलते चलते फिर एक पथरीले इलाके में जाते हैं और उस टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग चुकी होती है। इसीलिए जब ये सो रहे होते हैं तो एक सांप इनके पास से गुज़रता है और ये उसी को पकड़कर खा लेते हैं। उसके बाद ये मिस्टर स्मिथ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही अलील हो जाती है और वो चलने के काबिल नहीं रहते। फिर कहीं से पानी का बंदोबस्त करके मिस्टर स्मिथ को पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने के बाद वो उनमें थोड़ी सी जान आती है और उनको फिर अपना सफ़र रवाना होना था, इसीलिए वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। कुछ देर आगे जाते हैं तो एक छोटी सी नहर या झरना आता है, उसमें वो लोग नहाते हैं, पानी पीते हैं और फिर अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। यूँ वो चलते चलते चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। चाइना और इंडिया के बॉर्डर के दरमियानी रास्ते को इख्तियार करके एक चाइना के गांव में जाते हैं और वहां से कहते हैं कि हमें इंडिया जाना है, जिसकी वजह से चाइनीज़ लोग उनकी मदद करते हैं और उन्हें रात का ठहरने का कहते हैं। रात वो ठहरते हैं वहाँ पर, वो उन्हें चाय और खाना सर्व करते हैं और सुबह जो है वो रवानगी के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक चाइनी बंदा उन्हें बताता है कि मौसम अब ठीक नहीं है, तो सफ़र में एहतियात करें और अभी सफ़र ना करें।
یہ بات سن کر زوران، ٹوماس اور اسمتھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی سی ریسٹ کر لیتے ہیں، 2-4 منٹ ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن گیانوش جو کہ ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم آرام نہیں کر سکتے، اگر ہم رک گئے تو ہم تھک جائیں گے اور ہم پھر کبھی اتنا سفر نہیں کر پائیں گے۔ سبھی کہتے ہیں کہ رک جاؤ، لیکن گیانوش کسی کی بات نہیں سنتا۔ ان میں سے 3 بندے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور اسمتھ وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ مسٹر اسمتھ اب واپس اپنے وطن امریکہ جاتے ہیں یا پھر یہیں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ پھر یہ تینوں بندے زوران، اینڈریو اور گیانوش ویزجیک انڈیا کے بارڈر پر پہنچتے ہیں۔ جب یہ انڈیا کے بارڈر پر پہنچتے ہیں تو اس وقت انڈیا کے لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ایک لیڈر کو بلاتے ہیں جو کہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کاغذات وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں، پاسپورٹ وغیرہ یا اس طرح کی IDs۔ ان کے پوچھنے پر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پاسپورٹ یا کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہیں اور ہم سائبیریا کی جیل سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم کئی مہینوں سے سفر میں ہیں اور ہم آپ سے پناہ کی سفارش اور گزارش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کے لوگ، انڈیا کا وہ لیڈر، انڈیا کا وہ گاؤں کا وڈیرا ان کو پناہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد گیانوش ویزجیک بالآخر 1989 میں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر انہیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ 1939 میں وہ سائبیریا کے جیل سے بھاگے تھے اور 1989 میں گیانوش ویزجیک بالآخر اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن تب ان کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں پہنچ جاتی ہے۔ امید ہے SDV کی یہ ویڈیوز آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔